the real scary thing is that people have started selling investments by taking loans. मतलब वो आपको कह रहे हैं कि भैया आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी लोन लेकर के आप और इन्वेस्टमेंट कर दो. What is the point of achieving financial success at an age of 80 at the cost of your peace and relationships? देखेंगे कि 97% ऑफ म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो 5 साल के पहले विड्रॉ हो जाते हैं. 93% 3 साल के अंदर. उसका कारण क्या है? जबकि म्यूचुअल फंड हम सब जानते हैं मिनिमम 5 से 7 साल का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए म्यूचुअल फंड में. लेकिन Yeah. फिर भी इंडिया के अंदर आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 5 साल के आगे ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि नील है. Age to get the financial planning done for yourself. आज हम जा करके बैंक से पूछते हैं कि मैं कितने का लोन मिल सकता है मेरे को. तो हाँ, बैंक मुझे सब कुछ मिल जाएगा, क्या टेंशन. टाइम दैट दे डोंट नो व्हाट टू डू विद, गिव पीपल मनी दैट दे हैव नॉट अर्नड, दे विल बाय थिंग्स दैट दे डोंट नीड. इन्वेस्टमेंट की दो ही कारण थे, ठीक है. देयर कैन बी ओनली टू थिंग्स. वन, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द क्यूरियस पॉडकास्ट. और आज हमारे साथ हैं बहुत ही लर्नेड प्रोफेशनल फ्रॉम द फाइनेंस वर्ल्ड, मिस्टर केवल भानुशाली. केवल भानुशाली सर की हम स्टोरी तो सुनेंगे ही, बट उनसे कुछ फाइनेंस के नॉलेज नगेट्स हम जरूर लेने वाले हैं. सो वेलकम टू द शो सर. हाउ आर यू फीलिंग टुडे? thank you Pooja, and thanks for having me here. I'm feeling really good, excited, and it's a great day to start this recording. Yes. So guys, we are shooting this on 22nd January. Publish कब होगा हम कुछ जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे. But yes, this is a very auspicious day for every Indian. Right. So sir, let's go back. Let's go back to the days when you were just starting out in your career, because everybody wants to know कि यार केवल सर की क्या story है. He's the founder of One Finance, but how he got into finance. So let's start from there. To be very honest, I mean, introduction to finance happened really early in life. I mean, family background was into FMCG and broking, but as a sub broker. And so finance से introduction काफी पहले हो गया था, but I had never really thought of making that as the only option in life. I've tried being in kinetic engineering while I was, just graduating. Okay. So I just graduated, and then I got a, उस time पे graduates को भी commerce में भी campus placement होती थी अच्छी colleges में. So we just went through that, and I realized that finance as an industry is very, very important. And at that point in time, it was just around the corner, growing, and a lot of new exciting stuff were happening. And again, been pretty lucky in life, blessed to come across right people very early in life. So, one of our mentors in Kinetic at that point in time, he just happened to quit Kinetic after like around 17 years of automobile industry experience. Okay. And we were all shocked, right? So we spoke to him, and then when I met him, he told me one thing, that I may have put 17 years into automobiles, but that should not limit me from taking a step and getting into an industry which is even more promising from here on. And he had joined an insurance company at that point in time. So ये चीज मेरे को बहुत जल्दी सीखने मिल गई लाइफ में, कि बहुत लोगों को क्या होता है कि इंडस्ट्री और एक्सपीरियंस को लेकर के फिर शुरुआत एफिनिटी से होती है, एंड बाद में वो हेलबेंट हो जाते हैं. वो जो होता है ना, सम कॉस्ट फैलेसी, कि मैं तो 10 साल से यही काम कर रहा हूँ, मैं तो इसी इंडस्ट्री का हूँ, मैं तो यही करूंगा. तो वो इंडस्ट्री जंप नहीं लेते. दे कीप ऑन वर्किंग इन एन इंडस्ट्री विच इज अ सल्किंग इंडस्ट्री. It's an industry that doesn't need you anymore, or it's not growing at that pace. So it's never too late to switch your industry. And I think that is something which I learned pretty early in life. That's such a powerful message, actually. And sunk cost fallacy, I have personally seen it at so many places, that so many of my friends also, when they don't really feel connected with the industry or the work that they're doing, but they're also too afraid to take that next, leap of faith. So I totally get it. Okay. Sir, thoda sa, let's talk about One Finance. उसके बारे में आप थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए. इवन I'm pretty sure a lot of people watching this are already users of One Finance. I'm one of them. But let's hear back, how did this idea strike to you? फिर कैसे जो है, how the things moved from just being an idea to the implementation stage? See, One Finance का idea अगर मैं कहूँ तो मतलब it was there since last one decade, like
but it was not in the exact form. The idea was pretty simple, that do we really have to compromise on our values Hmm. as a financial service provider or any industry to achieve financial success, at the cost of, matlab, can only financial success only be achieved at the cost of misselling and at the cost of somebody else's mental peace? That Hmm. was always a challenge, right? And I mean, Hmm. financial industry अगर आप देखेंगे तो has been attributing most mis-selling cases in the country today, in even in the consumer forum, and that is something which was always a concern, and always tried to kind of have it in the back of my mind कि अच्छा क्या कर सकते हैं, and that was also one of the very important reason why I moved away from mainstream corporates very early, because I Hmm. realized that there needs to be a structural change. आप आप अगर जो किसी ऐसी कंपनी में ही काम कर रहे हो, वहां पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता, राइट? A lot Hmm. of people, my friends and all, they wanted to do honest business and they wanted to do a lot of honest stuff, but then they would be like, अच्छा कंपनी अगर ऐसी नहीं है तो क्या करें? तो एक चीज समझ में आ गई कि भाई अब आपको कंपनी ऐसी बनानी पड़ेगी जो कि ऑनेस्ट है, जो कि उस तरीके से कस्टमर से एक्चुअल में वैसा काम कराना चाहती है. And while I was going through that journey, Jeet Marwadi, who is my co-founder here, and he happens to be from Marwadi family itself, Hmm. and he had studied abroad. When he came back, he joined his father's business here. Marwadi Shares and Finance is one of the leading financial services organization in the country. While I was seeing a lot of corporates in Mumbai and other places, he was seeing their family business, which technically had 500,000 customers and were the largest broking company in Gujarat, and never had there been a sales team, never had that been a target driven organization. So when Jeet and I met also, and when I learned a lot about, of course I had heard about the company in itself, but Hmm. when I learned about the fundamentals of the the entire business and everything, we just matched. So Hmm. here I was always contemplating कि क्या ऐसी कंपनी कभी हो भी सकती है जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो, by doing right things and having right values, और किसी को मिससेल ना करना पड़े. There was a company which was already running like that Hmm. since last 25 years. So then we decided to come together. Then we started One Finance, and Hmm. again God was really kind. एक बार आपका मिशन अगर अच्छा होता है तो बहुत सारे लोग जुड़ते जाते हैं, काफी सारी चीजें होती जाती हैं. तो we happen to be the only finance company in the world right now to have a patent on a psychology assessment, Yeah. which is money science. Yeah. So that's one of the big achievement in a very short time. Because जो ये क्वेश्चन रहता है, आप किसी भी फाइनेंशियल प्लानर के पास जाओगे या किसी भी बैंक के एनी Hmm. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे, वो आपसे ही पूछेंगे कि बताइए आपका रिस्क एपेटाइट क्या है. दैट्स लाइक यू वॉकिंग इनटू अ हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर आस्किंग यू कि आप बताओ आपको बीमारी क्या है. आपका सो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? आपका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, आपकी बीमारी भी क्या है, या आपको Yeah. क्या लगता है कि आपके पास कितना समय है Right. ना? तो उसके लिए तो आप तो कुछ ये बता सकते हो ना, सिम्टम्स बता सकते हो. तो Hmm. यू कैन इन फाइनेंशियल प्लानिंग आल्सो यू कैन टेल अबाउट व्हाट योर माइंडसेट इज और व्हाट यू थिंक, Hmm. but the result, the diagnosis has to be done by the service provider or a qualified professional. You can only talk about symptoms. So that is why we were very clear that we are not going to ask our customer कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है. Hmm. और फिर क्या होता है, इस चीज का जवाब नहीं है लोगों के पास, तो उन्होंने क्या किया, वही 4 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है: एग्रेसिव, डिफेंसिव, Hmm. मॉडरेटली एग्रेसिव एंड मॉडरेटली डिफेंसिव. Hmm. एंड दैट्स अ वेरी शैलो वे ऑफ डिफाइनिंग ह्यूमन साइकोलॉजी. Hmm. एंड इसीलिए आज आप देखेंगे कि 97% ऑफ म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो 5 साल के पहले विड्रॉ हो जाते हैं, 93% Hmm. 3 साल के अंदर, और आई थिंक ओवर ओवर 50-60% कुछ अराउंड फर्स्ट ईयर के बाद ही विड्रॉ हो जाते हैं. उसका कारण क्या है? कि किसी फियर या ग्रीड में उस मोमेंट में उनको टेम्पररी मैनिपुलेट करके एक डिसीजन ले लिया गया है. Hmm. तो जो मैनिपुलेशन है ना, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी टेम्पररी. तो वापस जब 1 साल होता है तब वो रिन्यू नहीं कर पाते उसको, या वो रिन्यू करेंगे नहीं, या वो 1 साल के आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे. फिर कुछ और फ्रॉम वन गुड थिंग टू द नेक्स्ट बेस्ट थिंग के चक्कर में वो इंसान दूर जाते रहता है. जबकि म्यूचुअल Hmm. फंड हम सब जानते हैं मिनिमम 5 से 7 साल का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए म्यूचुअल फंड में. लेकिन Yeah. फिर भी इंडिया के अंदर आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 5 साल के आगे ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि निल है.
97% Hmm. विड्रॉल छोटी बात तो है नहीं. Hmm. So yeah, that's what One Finance is. One Finance is a clean, unbiased financial planning institute. यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें बस पॉइंट आउट करना चाहूँगी जो आपने जैसे बोली मिस सेलिंग वाला है. I'll share one incident and I won't name the bank. So my one of my cousins is working in the bank, right? और just because उनका टारगेट था and he knew that कि मैं ठीक ठाक कमा लेती हूँ तो इज लाइक यार खरीद ले मेरा बस टारगेट पूरा हो जाएगा. नथिंग कि मेरे को नीड है उसकी, मेरे पैसे जो है ब्लॉक हो जाएंगे. और कुछ कुछ स्कीम्स ऐसी होती है ना जिसमें आप एक बार पैसा डाल दो तो उसके बाद आप वो टेन्योर कंप्लीट करने के बाद ही आपको कुछ फायदा मिलेगा. अगर आप उसको बीच में ब्रेक करते हो तो आपके ऊपर चार्जेस ज्यादा लग जाते हैं, आपका लॉस ज्यादा हो जाता है. सो आई टोटली अंडरस्टैंड कि कैसे टारगेट बेस्ड सिस्टम्स बनाकर सिर्फ कस्टमर्स को कुछ भी सेल किया जा रहा है. सो Right. बैंग ऑन दैट पॉइंट. Regarding the patent that you guys have, One Finance has the money sign. I actually did my analysis and mine was virtuous elephant. So Wow. wanted to talk more on that. Could you लाइक टेल कि मनी साइंस से कैसे आपके जो फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, आपके जो प्रोफेशनल्स हैं, वो उनको अंडरस्टैंड करके कैसे वो आपके जो कस्टमर है उनकी साइकी समझते हैं एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे डिवाइज अ प्लान दैट वुड बी मोस्ट सूटेबल फॉर द कस्टमर इन क्वेश्चन. So financial planning के लिए तो जैसे there are four important analysis which are required. One is your psychology, which is your money sign जो हम करते हैं. उसके अलावा हम करते हैं आपका जनरेशन प्रोफाइल. तो जेन ओके. 1 2 3 होता है. तो जेन 1 मैं एकदम साधारण लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा. अगर तो जेन 1 वो होते हैं कि जो कि बहुत ही ब्लू कॉलर जॉब्स करते हैं, से दुकानें चलाना छोटी, या फिर या कहीं पे एक एक ब्लू कॉलर जॉब चलाना, एक एक ऑटो रिक्शा चलाना, या इस तरीके के जो काम है जो कि राइट. बहुत ही ब्लू कॉलर्ड है. उसके बाद आ जाते हैं जेन 2 पे. जेन 2 वो होते हैं जो अपनी फैमिली में पहले पहले पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, पहले पहले इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं. तो उनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उनके एस्पिरेशंस होते हैं. दे आर द फर्स्ट एस्पिरेंट्स ऑफ देयर फैमिली, एंड दे हैव एस्पिरेशंस नॉट ओनली ऑफ अक्यूमुलेशन, बट दे हैव एस्पिरेशंस ऑफ शेयरिंग. शेयरिंग. तो वो होता है कि मतलब लाइक कि मैं मेरे मॉम डैड को कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल भेजूं, या करेक्ट. मैं मेरे लिए घर खरीदूं, मेरे छोटे भाई बहनों के लिए मैं कुछ करूं. तो ये जो होता है ये जेन 2 होता है. एंड जेन 3 एक ऐसी चीज है जहां पे सर्वाइवल और लाइक लाइक सोशल स्टेटस के ऊपर निकल जाते हैं वो लोग. और फॉर देम इट इज इम्पोर्टेंट अबाउट सेल्फ वैलिडेशन एंड एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपीरियंसिंग. तो वो उस लेवल पे आ जाते हैं जहां पे उनको मतलब उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई आप कितनी दुनिया जानते हो, कितना आपने ट्रैवल कर लिया है, करेक्ट. कितना. एंड दे हैव वेरी हाई रिस्क एपेटाइट इनबिल्ट विद देम, राइट. फाइनेंशियल तो फाइनेंशियल रिस्क एपेटाइट आपका जेन 1 जेन 2 जेन 3 के हिसाब से आता है. और जो इमोशनल रिस्क एपेटाइट है वो आपका मनी साइन के हिसाब से आता है. ठीक है. फिर जो गोल प्लानिंग होती है उसके ऊपर आते हैं लाइफ स्टेजेस. ओके. तो आज की तारीख में क्या होता है कि आप किसी भी ये जो जो रोबो एडवाइजरी आप देखेंगे, यूएस में भी रोबो एडवाइजरी बहुत ही जल्दी से फ्लॉप हो रही है. उसका कारण यही है कि वो शुरुआत में बहुत ऊपर चली गई क्योंकि इट वाज लुकिंग वेरी इजी, कन्वीनियंट लग रहा था कि भाई आप अपनी एज डालें, जेंडर डालें, ये डालें, वो डालें, गोल्स डालें, आपको रिवर्स कैलकुलेशन करके दिखा देंगे. बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट. राइट. आज आज आप से अगर जो एक 35 साल का मार्केटिंग का आदमी, 35 साल का स्पोर्ट्स पर्सन, एंड 35 years of neurosurgeon, all three of them are different life stages of their career. A करेक्ट. 35-year-old sports person is probably looking to retire. A Hmm. 35-year-old neurosurgeon is probably looking to even start. Yeah. ठीक है. And a marketeer is probably looking at the last 10 years or 15 years of his career, or probably looking at a new start of an entrepreneurship, right? तो तीनों के लाइफ स्टेजेस बहुत ही अलग होते हैं. हम सबके अपने अपने लाइफ के 4 स्टेजेस होते हैं. तो हम ये सारी चीजें फैक्टर करके फिर एक फाइनेंशियल प्लान डिवाइस करते हैं. तो जैसे आपका फॉर एग्जांपल है वर्चुअस एलिफेंट. नाउ नाउ दैट्स अ साइकोलॉजी. ये जो असेसमेंट जो हम करते हैं, दिस इज डॉक्टर गोल्डबर्ग के द्वारा 1964 में इट हैज बीन लाइक इंट्रोड्यूस्ड. इट्स कॉल्ड बिग 5 ऑफ पर्सनालिटी. Big Five or the ocean or जिसको the हम ocean बोलते हैं. or the Yeah. ocean, right? It's very famously called ocean as well. So जितनी भी टाइप के आपके मतलब साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स हैं, उन्हीं में से ये एक है, और जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है. तो आप एक नॉर्मल थेरेपिस्ट के पास भी जाते हैं, वो भी आपका असेसमेंट इन्हीं 5
तत्वों में करेंगे, इन्हीं 5 Correct. आप इनको एक ट्रेड्स Got it. समझने अपने। Got it. Got it. तो ये सबके अंदर होते हैं, किसी के अंदर कुछ ज़्यादा होता है, किसी के अंदर कुछ कम होता है। तो इनके Hmm. अलग-अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एक मनी साइन बनता है, कि Hmm. जिसके अंदर अगर जो से एक पर्टिकुलर ट्रेड ज़्यादा है, तो देन दे विल बी मोर fearful towards uncertain situations, Right. and somebody it is easy for somebody to stick on to decisions. जैसे Hmm. tactical tigers and sharks हैं, they Hmm. might come across as very wise and very Hmm. promising, but in the longer run they have the highest chances of going default Hmm. Okay. based on the different set of equations of these big five trades. Hmm. We have money sign, and उसके ऊपर हमने we have got a layer of Darwin's theory of evolution. So what happens is a lot of our DNA today also matches with all the species that we have evolved from, Hmm. and that is why we all behave a certain way that we do. अब हो क्या जाता है, हम Hmm. सबको बोलते हैं कि नहीं नहीं सबको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, हम Hmm. सबको बोलते हैं कि नहीं सबको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए. Hmm. The concept of working or the concept of investing or concept of any action in life is to live a fulfilled life, and that action itself is not life, Hmm. है ना. तो जब आप पैसे की भी बात करते हैं, इन्वेस्टिंग स्टैंड अलोन तो आपके लाइफ का मकसद नहीं हो सकता. Hmm. It's a mean to end, and it's not an end. Yeah. So while if what is the point of achieving financial success at an age of 80 at the cost of your peace and relationships, right? True. तो आप अकेले हैं, बीमार हैं और रिच हैं. That's a very very bad combination to be into, True. 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 right? True. So we realize that, and India is really lucky in that sense that we have got a great example and learning from developed nations like UK, Japan, US. आज आप वहाँ पे देखें कि मतलब people are in their 80s, Hmm. they have enough of equity corpus, but Yeah. नॉट रियली इन राइट शेप, राइट. इसीलिए Hmm. एंटी डिप्रेसेंट का सेल भी तो सबसे ज्यादा वहीं पे है जहाँ पे पर कैपिटा इनकम दुनिया में सबसे ज्यादा है. True. लग्जमबर्ग, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो लग्जमबर्ग आई थिंक हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, Yeah. Right. एंड इट आल्सो हैज द हाईएस्ट डिवोर्स रेट इन द वर्ल्ड. Damn. So if standalone money could like guarantee any kind of happiness or any kind Hmm. of fulfillment, Hmm. uh, these countries should have been the most happiest country. But Yeah. on the other hand, I don't, though I'm not a very strict advocate of all these indexes, but Hmm. just as an anecdote, the happiest country probably I think last year was Bhutan, Finland? Finland, Finland. Bhutan. Yeah. I Yeah. think Bhutan is also among the Among the top 10. Yeah. Right. या जबकि अगर आप देखो वहां पे तो पूरा पॉपुलेशन ही 5 लाख का, और किसी के पास कोई मतलब देयर आर नो कॉर्पोरेट्स, देयर इज नथिंग, राइट. Right. मतलब देयर इज नो स्काई Hmm. क्रेपर्स, देयर आर नो नथिंग फैंसी आउट देयर, एब्सोल्यूट रिमोट विलेज, दैट्स इट. Hmm. But then also people are happy. So Hmm. so point I'm trying to make, I mean, I'm not advocating you know not getting developed here. I'm just Yeah. talking about that one finance, we are in the business of peace of mind. So when Hmm. Jeet and I, we were also talking about what to create and how to create and all that, we were Hmm. very clear that we don't want to be into the business of wealth creation, into Hmm. the business of wealth accumulation. वो तो करने के लिए बहुत लोग हैं. Hmm. फाइनेंशियल एजुकेशन, वो भी करने के लिए बहुत लोग हैं. आप इस एजुकेशन का करते क्या हो एट द एंड ऑफ द डे? Right. This whole obsession of chasing CAGR Hmm. at the cost of life, it's not a very very smart barter to do. Hmm. Not a very meaningful way to live life, as you rightly Absolutely, mentioned. absolutely, absolutely. Wow, I'm really impressed with the way you look at life and how you're trying to inculcate all of that in the business that you're trying to create. A really, really valuable business, I'm pretty sure, in the long run. Because if everybody was so mindful of the business that they're doing, the value that they're adding to others' life, I believe, today the situations would have been very different. Itne scams nahi hote. Anyway, that's a story for another time. Let's talk about financial planning. So this podcast will be listened and seen by people who are in their who are starting out their career or who are in the middle of their career. So what does like आपके हिसाब से what is the right age to get the financial planning done for yourself?
I think the right age for financial planning is as soon as you become independent in terms of your finances, as in, self-sufficient. When I Okay. say independent, it means कि आप अपना खर्चा खुद निकाल रहे हैं and whatever there is there. Okay. Hmm. So that is very important. Okay. And financial planning, because the incentive system is built to incentivize very highly on investments only. Hmm. तो इसके लिए हर कोई सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही बेच रहा है, जबकि रियल प्रॉब्लम है लायबिलिटीज एंड द रियल प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स। पर Hmm. क्योंकि इंसेंटिव सिस्टम, आप देखिए कमीशन कौन से प्रोडक्ट में जुड़ा हुआ है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में, राइट। Yeah. लोन्स वगैरह में तो वन टाइम कमीशन मिलता है आपको, तो इसके लिए लोन फिर भी आदमी एक बार आपको ज्यादा से ज्यादा लोन दिलवा के चला जाता है। Hmm. पर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आपको हर साल रिपीटेटिव एक बार सेल्स करना और रिपीटेड 10 20 25 साल कमीशन आ रहा है। तो इसके लिए Hmm. पूरी की पूरी जो जनता है इस वक्त, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में है, वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ फोकस कर रही है। उसका कारण ही है, Hmm. जबकि एक नॉर्मल आदमी की जिंदगी में इन्वेस्टमेंट के पहले लायबिलिटीज आ जाती हैं, और रियल प्रॉब्लम्स इज लायबिलिटीज। Hmm. आप अगर देखेंगे, Right. लोन लोन लेना है, लोगों को पता भी नहीं होता कि रिड्यूसिंग और इसमें कितना फर्क होता है। या Right. जैसे मतलब ऑनबोर्डिंग इतनी आसान है, Hmm. एक लोन लेना डिजिटली पॉसिबल है, बट उसको क्लोजर करने के लिए फिजिकली जाना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारे तो तो चैलेंजेस हैं। तो ये पूरा सिस्टम का डार्क पैटर्न ऐसा डिजाइन किया है हुँ, कि आदमी को अंदर घुसाना बहुत इजी है, उसको हुँ, कर्जा देना इजी है, पर उसको उसमें से मुक्ति देना वो बहुत डिफिकल्ट कर दिया उन्होंने। आपको फोर हुँ, क्लोजर लेटर लेने जाना है तो वो आपको जाना पड़ेगा। आपका अगर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, जो कि अगर जो से इफ योर होम लोन इंटरेस्ट इज लिंक टू द रेपो रेट, हुँ, तो रेपो हुँ। रेट बढ़ गया अगर, तो आपका लोन का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, बट जब तक आप जा करके बोलोगे नहीं तब तक कम नहीं होगा, अगर रेपो रेट कम हो गया अच्छा। तो ये सारी चीजें रहती है। और एक नॉर्मल नॉर्मल जो आदमी होता है, जो कि जो मैंने कहा ना, जेन हुँ, टू इज सो एस्पेरेंट एंड इज सो लाइक केयरिंग फॉर द फैमिली एंड एवरीथिंग। वो तुरंत में जा करके, जैसे आपने कहा कि आपके ज्यादातर लिसनर अगर 25 27 साल के हुँ, आसपास के हैं, हुँ, जो लोग पहली पहली पोस्ट हुँ, ग्रेजुएशन करके अपने फैमिली में जाते हैं, तो राइट, पहली गाड़ियां लेते हैं। राइट। वो लोग जब वहां जाते हैं तो लाइक 10 लाख का अगर आपका लोन लेने का कैपेसिटी है, आपको जो सेल्स वाला होता है वो आपको 20 लाख की गाड़ी चिपका देता है, बिकॉज इज लाइक, सर 5 की जगह 7 साल का ईएमआई कर लो, क्या दिक्कत है। हुँ, पर वंस इन अ लाइफ टाइम वैसे कर करके मतलब उसको और मिस सेलिंग कर दी जाती है। क्रेडिट कार्ड मिस सेल्स हो जाते हैं, इतनी सारी चीजें, उसको वो लूप में फंसा दिया जाता है। एंड हुँ, नाउ द रियल स्कैरी थिंग इज दैट पीपल हैव स्टार्टेड सेलिंग इन्वेस्टमेंट्स बाय टेकिंग लोन्स। मतलब वो आपको कह रहे हैं कि भैया आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी लोन लेकर के आप और इन्वेस्टमेंट कर दो। तो मतलब अगर जब आप हाउसिंग लोन लेने जाते हैं, तब आपको फिर एक जना आकर के बोलेगा, सर एक काम करिए, अब आपका जितना ईएमआई है उतना आप इन्वेस्टमेंट भी कर दीजिए इक्विटी में। अरे भैया, लेकिन वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए व्हाट लेवल ऑफ स्ट्रेस विल दैट पर्सन गो थ्रू, हुँ, और क्या ये सही तरीका है? आप उसको स्टेप राइट, अप ईएमआई करके लोन पहले चुका सकते हैं। याह, And एग्ज़ैक्टली। how many people actually beat a 10 or a 12% return? How many हुँ, people do? 97% लोग तो विड्रॉ ही कर ले रहे हैं ना पैसा। हुँ, तो एग्ज़ैक्टली। तो इसका मतलब है कि भाई आपने उसको ओवर सेल और उसको मिस सेल कर दिया है, जस्ट हुँ, बिकॉज द एंटायर सिस्टम इज बिल्ड अराउंड इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में ये फर्क है। आज की हुँ, तारीख में हर इंसान इंडिया में, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर हुँ, ऑल डूइंग इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। कि हुँ, आपको 50 करोड़ रुपए राइट। लगेंगे तो हर महीने 1 करोड़ रुपए 300 साल तक इन्वेस्ट करना। अरे भैया, मेरी इनकम 25,000 रुपए, और मेरे हुँ, को आपने 40,000 का प्लान भेज दिया। वो तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया ना, बैकवर्ड इंटरेस्ट हुँ, कैलकुलेटर हो गया, वो प्लानिंग ट्रू। थोड़ी हो गया। प्लानिंग इज व्हेन यू टेल मी कि इफ योर एस्पिरेशंस आर सो हाई, यू बेटर इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ फॉर द फर्स्ट 5 years फॉर योर फर्दर एजुकेशन। हुँ, आप अगर राइट, 25 साल के हो, अगले 5 साल आप पैसे जमा करो, ताकि आप पहले अपने को और मजबूत करो, अपस्किल हुँ, करो, या कोई करेक्ट। नया बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो उसके हिसाब से प्लानिंग करो। तो गाड़ी मत खरीदो। तो हुँ, ग्लोबली क्या होता है, ये सारे बिजनेसेस ग्लोबली तो बहुत बड़े बिजनेस हैं फाइनेंशियल प्लानिंग वाले। हुँ, आप लोन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल से बात करते हो, आप हुँ, उससे पहले बात करोगे कि भैया मैं कितने का घर अफोर्ड कर सकता हूँ। हुँ, आज हम जा करके बैंक से पूछते हैं कि मैं कितने का लोन मिल सकता है मेरे को, तो हाँ, बैंक बोलेगा मुझे सर सब कुछ मिल जाएगा, क्या टेंशन। हुँ, एंड दैट इज वेयर द होल प्रॉब्लम इज। सो फाइनेंशियल प्लानिंग एज सून एज पॉसिबल, as early as possible, but financial planning and not हुँ, just investment planning। कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, वो तो यूट्यूब पे ऑलरेडी सब लोग बता रहे हैं।
Hmm. and anybody's guess is as good as anybody's guess. There has not been even a single scheme which was Hmm. number one last year and is number one this year. Hmm. एक भी म्यूचुअल फंड की स्कीम आज तक कंसेक्यूटिव 2 साल से ज्यादा नंबर वन पे नहीं रही है. Oh, right. तो फिर उसके बाद भी पास परफॉर्मेंस पे आपका पैसा लगवाना, दैट्स मिस Hmm. सेलिंग ओनली, राइट? True. Without understanding my needs, especially. Like, या yeah. एंड एट द एंड हु इज टू गारंटी कि मतलब एक म्यूचुअल फंड स्कीम विल आउट परफॉर्म द अदर? Nobody can. I'll tell you that. I mean, I've been Hmm. into fund management industry for so long, and I can tell you, all the people who are CIOs and fund managers today in India, they are all very brilliant people. Yeah. They all run a certain strategy, a certain, cyclical strategy. Hmm. तभी तो वो मतलब इतना ज्यादा आउट परफॉर्म भी कर पाएंगे जब अब उनकी साइकिल आएगी. इसीलिए लॉन्ग Hmm. रन के अंदर, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, आप नॉर्मल ETF करिए, वही काफी है. आप Hmm. नॉर्मल इंडेक्स फंड करिए, वही काफी है. तो हम Right. we are we don't recommend any products, we don't sell any products, we just do Hmm. the entire planning and we give you the best option for all the products, that's it. Hmm. Not like the one that is giving us commission. Hmm. Um, Again, like very meaningful कि भाई हर किसी को अपने फाइनेंसेस समझ के फिर ही जो है डिसीजन लेना चाहिए एंड फाइनेंशियल प्लानिंग बिकम सो इम्पोर्टेंट हियर. आई वांट टू pivot into loans now, so I'm going to talk about my personal story. So मैंने ऑटो लोन लिया था, ठीक है, शायद 1-1.5 साल पहले लिया था. और like honestly that मैं आज भी that's one financial decision that I still regret. सो जैसे कि आपने बताया, लोन देना तो इतना आसान है कि बस सब आपके घर पे आके सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवा के जाएंगे. ऑनलाइन कर दो, बस ऑनलाइन आपको एक पेमेंट पे क्लिक करना है, दिस एंड दैट. So I thought, let me just make the payment in advance because the stress of making that monthly EMI is very frustrating. तो मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ. So I asked them the loan closure document और उसमें जो है उन्होंने 40,000 का अलग से फाइन लगा दिया. फिर मैंने टोटल कैलकुलेट करके देखा, मैंने कहा लाइक व्हाट्स द डिफरेंस, ये तो मैं अगर लोन रखूं चाहे ना रखूं मेरे को सेम ही अमाउंट पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. सो लोन्स को लेकर तो इतना ज्यादा मिस सेलिंग है. टिल डेट सर आज भी मुझे हर दिन एक कॉल आता है कि आप जो है लोन के लिए एलिजिबल हो, लोन ले लो. आई एम प्रीटी श्योर आपको भी रोज आता होगा, मैं हर रोज. मैं जनरली यही कहता हूँ कि इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इंश्योरेंस सबसे ज्यादा बदनाम है मिस सेलिंग के लिए. बट अगर आप द हिडन प्रॉब्लम देखेंगे, इंडिया में सबसे ज्यादा मिस सेलिंग हुई है लोन्स को लेकर, क्योंकि इंसान इतना वल्नरेबल होता है उस मोमेंट में, और उस टाइम पे उसको जब पैसे देते वक्त गलत इंश्योरेंस चिपका दिया जाता है. हाउसिंग लोन के साथ ये इंश्योरेंस मैंडेटरी है, वो इंश्योरेंस मैंडेटरी है. कार लोन, आप कार लोन लेने जाओ, आपको इंश्योरेंस, कार लोन भी आपको उन्हीं से इंश्योरेंस करवाना पड़ता है. उसके बाद भी आपको ये सरप्लस चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, इतने तरीके से आपके इंटरेस्ट, जब जब आपके इंटरेस्ट मतलब घटने चाहिए थे तब घटे नहीं है. कई बार इतनी सारी आपको मतलब बाकी चीजों के लिए भी दे काइंड ऑफ just try to make it difficult, because while taking money we are in that vulnerable situation. We are like, चल ना भाई, जितने पेपर साइन करने हैं करा ले, बट अभी दे दे, पैसे दे दे. एंड उसी का पूरी तरीके से फायदा उठाया जाता है, और वहीं पे आपको एक फाइनेंशियल प्लानर न्यूट्रल तरीके से गाइड कर सकता है. राइट. सो हमने भी जैसे we are on Twitter, we hear all, we watch YouTube channels, people guiding us कि लोन का क्या सीन है. There's this one segment that says कि नहीं, लोन लेना चाहिए, आपके लिए जो है आपको लेवरेज करना चाहिए अपनी कैपिटल को, it is a good thing. Then there is other group that says कि नहीं नहीं लोन मत लो, जो है बहुत सरदर्दी होगा. Let's settle the debate for once and for all, sir. इसीलिए मैंने जो आपको पहले कहा कि मनी साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लोन के साथ पीस है या नहीं है, ये आपकी साइकोलॉजी है. जैसे अभी आपने कहा ना कि मैं आपका मनी साइन है वर्चुअस एलिफेंट, राइट? उसके अंदर यू वांट टू categorically keep improving your finance and have more control towards your planned finances. You like being planned, you like being a certain way. आपने अपना पूरा PDF भी अगर देखा होगा, उसके अंदर ये सारी चीजें एकदम क्लियर लिखी हैं. जो अभी आपने कहा ना कि भाई मेरे को EMI से थोड़ी मुक्ति चाहिए थी, I wanted to get it. Then there are people who get motivated when they are pushed. There are two type of people. एक है जिनको अगर आप बोलो कि बॉस आज एग्जाम है, आज एग्जाम है, एग्जाम है, वो स्ट्रेस में कुछ नहीं लिख पाते. दूसरे लोग हैं जिनको आप बोलो आज एग्जाम है, वो स्ट्रेस में ओवर परफॉर्म कर जाते हैं और अच्छा कर जाते हैं. वो उनकी पर्सनैलिटी है. आप
यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त इस इंडस्ट्री की है, और ओवरऑल लार्जर लेवल पे मैं कहूंगा देश में भी काफी सारा ये तकलीफ है हुँ, कि जहाँ पे जो मेरे लिए अच्छा था, हुँ, तो मैं सोचूंगा बस वही चीज सबको करनी चाहिए। जैसे अगर मेरे लिए फाइनेंस अच्छा राइट, था तो मैं सबको बोलूंगा बॉस ये क्या तुम कर रहे हो कंटेंट वगैरह, आ जाओ फाइनेंस में, पैसा तो इसी में। हुँ, राइट, You getting it? Now राइट, everything else is useless, and that हुँ, is where the real problem starts. That it suited my personality. So हुँ, liability से पैसा बनता है क्या? लेवरेज लेने से पैसा बनता है क्या? हाँ बनता है। हुँ, दुनिया का हुँ, हर बड़ा आदमी लेवरेज लेकर बड़ा हुआ है, ये भी गिवन है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सब है। पर दुनिया का हुँ, सबसे बड़ा आदमी अगर वॉरेन बफे है, उसने हुँ, लेवरेज नहीं भी लिया है, वो भी गिवन है। राइट? हुँ, तो ऐसा तो है नहीं कि आप, पर उसने अपनी पर्सनैलिटीज को स्टिक अराउंड किया है, उसने उस तरीके हुँ, से स्टिक अराउंड किया कि जो 11 साल की उम्र में जो उसने शेयर लिया था वो 40 साल की उम्र तक रख के बैठा, हुँ, क्योंकि राइट, ही टुक अ डिसीजन व्हिच वाज बेस्ट सूटेड टू हिज इमोशनल साइड, एंड ही नेवर टुक मनी एक्सटर्नली बिकॉज दैट वुड मेक हिम पैनिक। हुँ, आप कितने राइट, इंटरव्यूज उनके देखोगे जहां पे वो बोलते हैं ना कि भाई जैसे $5 लाख का उन्होंने एक बड़ा क्यों रखा, आज भी जो जो मेन शेयर है बर्कशायर हैथवे का हाँ जी, $5 लाख का है। या मतलब कितना महंगा है, 4 करोड़ रुपए का एक शेयर है। हुँ, उसका मेन पेरेंट शेयर वो रखने का उनका रीजन ही होता है, इज लाइक आई डू नॉट वांट एक्सट्रीमली रिटेल पार्टिसिपेशन, जहां पे कल पैनिक में अगर ये लोग रिडम्पशन करते हैं, आई डू हुँ, नॉट वांट टू सेल अ राइट स्टॉक बिकॉज देयर इज अ रिडम्पशन प्रेशर। सो हुँ, एवरीबody हैज टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो वन थिंग फिट्स ऑल। ओके, जैसे हम शुरू जब मनी साइन कर रहे थे तो आपका से वर्चुअस एलिफेंट आया, तो बहुत लोग हमारे पास आते, सर मेरा वर्चुअस एलिफेंट आया लेकिन मेरे को शार्क बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा, एक काम करो फिर, मतलब आप ये भी बोल दो कि मेरे को उड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। आज आप ह्यूमन पैदा हुए तो आप ह्यूमन रहोगे ना। करेक्ट, आप ये थोड़ी करोगे जा करके कि मतलब कल छलांग लगा दोगे टेरेस से कि नहीं नहीं अब नथिंग इज हुँ, इम्पॉसिबल, मैं उड़ के दिखाऊंगा। हुँ, हुँ, है हुँ, ना? सो यू विल हैव टू एम्ब्रेस द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, एंड देन देयर इज इनफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। हुँ, या हर साइकोलॉजी के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स, प्रोडक्ट, सब कुछ अवेलेबल है। हुँ, देयर इज नथिंग दैट विल बी मिस्ड आउट। देयर हुँ, इज नथिंग दैट वो मतलब देयर इज नो सच हॉरोस्कोप और देयर इज नो सच एस्ट्रोलॉजी दैट सेज कि सिर्फ इसी राशि वाले ही दुनिया पे राज करेंगे। हर करेक्ट, राशि वालों ने एक अलग अलग टाइम पे किया है, वैसा है। करेक्ट, करेक्ट, सो डोंट बी हेलबेंट ऑन इट, दैट्स ऑल आई वुड से। हुँ, हुँ, तो ये लोग ओके, जो कहते हैं कि नहीं नहीं यही सही है और यही सही है, दोनों गलत है। हुँ। बिकॉज आपका सही आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और हर किसी के लाइफ के डायनामिक्स बिल्कुल अलग होते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग अलग होती है, उनका जो फैमिली में मतलब एक फैमिली वेल्थ जो होती है वो अलग राइट। होती है। समबडी हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो ग्राउंड, समबडी इज़ समवेयर इन द मिडल एंड देन फ्रॉम देयर दे हैव टू बिल्ड अपॉन। तो हर किसी की लाइफ के डायनामिक्स अलग हैं। सो राइट, सो आपने अभी अभी एक और चीज कही कि देयर इज अ फाइनेंशियल डिसीजन दैट यू रिग्रेट दैट यू गॉट एन हाँ, ऑटो लोन। हाँ। मैं काफी साल पहले तक कहीं पर भी जाता था तो मैं यही चीज बोलता था कि जो स्पेशली जो पास आउट होते थे उनको कि भाई आप जा करके पहले गाड़ी खरीद लोगे, फिर तो हुँ, मतलब क्या ही है, उससे अच्छा वो पैसे आप इन्वेस्ट कर दो, ये वो। हुँ, Until one day हुँ, I I was in a college in Pune where I हुँ, was giving a lecture or something, and then the boy जहाँ पे मैं जाता था तो he हुँ, said कि सर मेरे पेरेंट्स वगैरह आए हैं एंड आई हैव गॉट मैं कैंपस प्लेसमेंट हो गया था मेरा और मैंने एक गाड़ी ली है, मॉम डैड भी यहाँ पे आए, आई वांट यू टू गिव देम दैट की। ओह! सो तो स्वीट। मैंने कहा यार मैं तो इस बात में ही बिलीव नहीं करता हूँ, क्या ये तू भी मतलब पहला पहला अभी तक तो बाहर निकला नहीं है, उसके पहले तूने 5 लाख रुपए का कर्जा ले लिया, जो स्टार्टिंग एट अ नेगेटिव। हुँ, तो सुन लिया बेचारे ने, क्योंकि अब मैं था उससे थोड़ा सा सीनियर। हुँ, तो फिर गए हम, उसके मॉम डैड को चाबी दी मैंने। हुँ, उसकी मॉम ने मतलब हाउस हेल्प तरीके से काम किया हुआ है, उसके डैड ओह! ने मतलब बहुत ही ज्यादा श्रम किया हुआ है लाइफ में। जो वो लोग रोए हैं और जो खुशी के आंसू उनके निकले हैं जब वो गाड़ी में बैठे हैं, हुँ, वो किसी भी एंगल से वो खराब फाइनेंशियल डिसीजन नहीं हो सकता। ट्रू, ट्रू, ट्रू। देन आई रियलाइज कि नहीं, आपका हुँ, इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस इज टू गिव दैट हैप्पीनेस एंड या एक्सपीरियंस दैट हैप्पीनेस, इट कांट कम एट द, आप 5 लाख का आज हो सकता है उसके पास 25 लाख का म्यूचुअल फंड होता, लेकिन क्या हुँ, वो खुशी होती जो उसके पूरे मॉम डैड के 40 साल के श्रम की और जो वैलिडेशन जो उनको मिला उस गाड़ी में। हुँ, वो गाड़ी नहीं थी, वो उनके लिए उनके पूरे जीवन का एक वैलिडेशन था कि मैंने इतनी मेहनत करके मेरे बेटे को
आज स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, एक राइट। ऐसी एमबीए कॉलेज भेजा जहाँ पे 14 लाख रुपए की फीस थी। हम्म। तो कितना कर्जा लिया होगा उसके घर वालों ने। सही पर बात है। आज आज हमारा बच्चा उस चीज को अप्रिशिएट करता है, और सोशल रिस्पेक्ट आज हमें मिला है हमारे लड़के की वजह से, हमारी लड़की की वजह से। वो हम्म। जो चीज है दैट इज लाइफ, हम्म। एंड मनी लेट्स यू एक्सपीरियंस दैट लाइफ। या। सो मतलब मैं आपको कभी भी कहूंगा कि ये जो भी आपको जितने भी एक्सपर्ट बोलते हैं ना कि उबर में चले जाना, आप कभी घर नहीं खरीदना, मैं तो आज तक किसी करोड़पति से नहीं मिला हूं, देखो, जिसके पास कोई घर ना हो, कुछ ना हो। ठीक है, कुछ एक दो लोग जिनका उदाहरण आजकल सोशल मीडिया पे काफी देते हैं, उनके भी भाइयों के बड़े बड़े घर हैं, वो 7-7, 8 हजार स्क्वायर फीट के घरों में रहते हैं जहां से उन्हें कोई नहीं निकालता। वो जितना हम्म। रेंट भरेंगे कल अगले महीने डबल हो जाएगा रेंट, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। If a हम्म। billionaire is trying to tell you that that is not, something that you should worry about, you have to realize तो उनके फादर के पास भी घर है, उनके ब्रदर के पास भी घर है। ठीक है, हाँ। तो उसको लेकर के आपके पास कोई भी घर नहीं, आपका पूरा परिवार अगर रेंटेड अपार्टमेंट पे है, करेक्ट। बच्चे लेकर के आपको हर 12 महीने में अगर शिफ्ट होना है, आप हम्म। मतलब यू कांट रियली involve yourself into anything हम्म। full-heartedly if you don't really have that level of stability and security. The या। purpose of money is to give you that stability and security. You हम्म। can't have more net worth at the cost of stability and security. एब्सोल्युटली ट्रू सर। वही, मतलब सब लोग अपनी लाइफ का एक एस्पेक्ट दिखा देते हैं, अपने एक ओपिनियंस दिखा देते हैं, बट दे डोंट रियली टॉक अबाउट मतलब इन इट्स एंटायरिटी जो है, लाइक फैमिली की क्या स्टैंडिंग है, रिलेटिव्स की क्या स्टैंडिंग है। टोटली अग्री, आई टोटली अग्री ऑन दैट। Right. आई वांट टू टॉक अबाउट द बिगर प्रॉब्लम देन लोन विच इज क्रेडिट कार्ड्स। मेरा फ्रेंड है, उसके पास कम से कम भी 7 से 8 क्रेडिट कार्ड है, एंड आई कुड नॉट बिलीव। मैंने कहा करता क्या है भाई तू इतने कार्ड्स का? तो कह रहा है कि यार वो फ्री में मिल जाते हैं तो मैं रख लेता हूँ। मैंने कहा ये कौन सा माइंडसेट है कि फ्री में मिल जाते हैं तो रख लेते हैं? व्हाट आर योर थॉट्स? पीपल बाइंग क्रेडिट कार्ड्स रेट लाइफ इसमें थोड़ा राइट लेफ्ट। थोड़ा सा अपने को जाना पड़ेगा अराउंड 80s में। हाँ जी। If I may ask you, which is the first day of the month, of the week? मंडे। संडे। Sunday. It is Sunday, संडे। and 1988 के इसमें it was always Sunday, right? Sunday was supposed to be the God's day, the family day, कि आप ये करते हैं वो करते हैं। जैसे ईस्टर्न साइड में it used to be रविवार, तो रविवार का मतलब रवि का एक उदय होता है। It's the start of the day. That is why. So we are all solar being. We are in a solar system. So we used to say कि रविवार is the start of the day, and in the Western philosophy it was Sunday. It was a family day. You start with a certain practices and all that. Point being that the big marketing companies of America, they changed that into a weekend. Constitutional change किया गया जहां पे Monday became the first day and Sunday became the last day of the week. One. Second, इंडिया में आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अब होता क्या है कि जब कैपिटलिज्म को ट्रिगर करना था इन अर्ली 90s एंड लेट 80s इन यूएस, दे रियलाइज कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है। अगर आप पूरे हफ्ते काम करते हैं मंडे टू सैटरडे, और आपके पास सुबह अगर जो संडे आपके पास एक ही दिन है, तो आप सुबह पहले चर्च जाएंगे या कुछ करेंगे या कहीं पे आराम करेंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। बाय द एंड ऑफ द डे यू विल रेस्ट एंड देन यू विल स्लीप, राइट? सो डिड नॉट हैव टाइम, राइट? तो वो जा करके शॉपिंग करेंगे ही क्या? वो जा करके कैपिटलिज्म को बढ़ावा देंगे ही कैसे, राइट? सो देन दे एडेड एन एक्स्ट्रा डे फॉर पीपल, राइट? Saturday. Saturday, and then they made the concept of weekend. They made paydays as Fridays. Okay, one. Second, they gave you money that you have not earned in the mode of credit card. Okay. तो क्या होता है कि एफिनिटी जो होता है ना, जैसे आप सोचो कि अगर आपको ऐसा पैसा जो आपने खुद नहीं कमाया ना, उसको खर्च करते वक्त इतना दुख हो ही नहीं सकता, Yeah. right? So it's a very psychological thing. So what they said was, give people time that they don't know what to do with, give people money that they have not earned, they will buy things that they don't need. Wow. That is the crony capitalism, and that is what unfortunately the West fell for. Really sad, disheartening to see a lot of new generation in the East also succumbing to it after having so much of, देखो West के पास तो क्या था, they were leading, तो उनके पास तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी सीखने की। हम तो एटलीस्ट सीख सकते हैं, वाइज मैन इज द वन हु लर्न्स फ्रॉम अदर्स मिस्टेक।
Hmm. है ना? तो हम तो फिर भी सीख सकते हैं, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये हम सीखेंगे, इसमें से किसी का भला नहीं हुआ है। आप Hmm. क्रेडिट कार्ड डेट्स वगैरह देखें, 36% का इंटरेस्ट रेट चलता है क्रेडिट कार्ड्स पे, एंड दे वेट फॉर दैट, इट्स अ प्रोडक्ट दैट वेट्स फॉर दैट वन One बैड mistake. मोमेंट ऑफ योर लाइफ, Yeah. जो कि सबके लाइफ में आया है। देखो, खराब समय Hmm. तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये, कि खराब समय तो अमिताभ बच्चन के लाइफ में भी आया था। तो Hmm. आप और मैं तो क्या ही चीज़ है ना? True. So it's going to be there, right? Everybody is going to go through that. When I say it's Hmm. an example to say that somebody who is that great and magnanimous will also have bad times. But how you sail through that is going to be very important if you have not done, you know, things which are not reversible. Hmm. सो क्रेडिट कार्ड डेट तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। 2 लाख करोड़ के ऊपर का क्रेडिट कार्ड डेट है, और अब आप खाना से लेकर के सब कुछ आप क्रेडिट कार्ड पे कर सकते हैं। 36% Hmm. इंटरेस्ट भर के आप हॉलीडे पे जा सकते हैं। अ, Hmm. जैसे कई बार मैं हंसता हूँ कि जैसे बकेट लिस्ट के ऊपर एंड ऑल दैट, Hmm. तो बकेट लिस्ट क्या है? ऐसी कोई बकेट लिस्ट करके कोई चीज ही नहीं थी। इट वॉज अ मूवी Hmm. फॉर विच मर्सिडीज फर्स्ट टाइम दे यूज्ड इट इन देयर मार्केटिंग कैंपेन। Okay. बकेट लिस्ट एक बहुत पुरानी एक क्लासिक मूवी है। Okay. उसके ऊपर फिर मर्सिडीज जो कंपनी थी, उसने एक बड़ा मार्केटिंग कैंपेन चलाया कि भाई बकेट लिस्ट क्या होती है। तो दे स्टार्टेड आस्किंग पीपल कि यू मेक योर बकेट लिस्ट, यू मेक योर बकेट लिस्ट। So Hmm. you, and then they implanted a subconscious psychological thought in everybody's mind of buying a Mercedes car. Hmm. So they knew कि भाई emotional purchase will happen at an age of 15 to 20. Hmm. ओनली 35-40 साल की उम्र में आदमी जाकर के उस कार की पेमेंट करता है और डिलीवरी लेता है, बट अपने मन में तो वो बहुत पहले खरीद चुका होता Hmm. ट्रू। मेरे को अच्छे से याद है, मैं बचपन में हमेशा ऐसे रोल्स रॉयस लिखती थी, पता नहीं क्यों। है। हर एग्जैक्टली। किसी सो these are called planting things in your subconscious. राइट। आपको बार बार वो दिखाया जाता है। तो जब वो बोलते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है, रोल्स रॉयस, दुनिया की हुँ, सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है, रोल्स रॉयस, तो या आपके दिमाग में वो चीज उसको लेकर के एफिनिटी बना लेती है कि भाई मेरे को यू नो सबसे महंगी गाड़ी खरीदनी है, रोल्स रॉयस। राइट, राइट। हाँ, वो कैच देम यंग, वो एकदम ही क्या बोलते हैं, एकदम इम्प्रेशनेबल एज होती है उस इम्प्रेशनेबल एज में आपको सबकॉन्शियस हिंट्स दे दे या करके आपको बता दिया जाता है कि ये आपको ये पसंद है। आप हुँ, इमेजिन करिए कि मैंने एक एक्सरसाइज करी थी, एक काफी सारे लोग थे, मैंने उनको बोला कि भाई आप बताइए मेरे को कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है। हुँ, तो ज्यादातर लोगों ने कहा, उस टाइम पे ऑडी नई नई आई थी इंडिया में, तो लाइक ऑडी, हुँ, फिर कुछ हुँ, बीएमडब्ल्यू वाले थे, कुछ मर्सिडीज वाले थे, फिर कुछ फरारी हुँ, वाले थे, हुँ, लंबोर्गिनी वाले थे। एंड आई सेड, अच्छा ये जो फरारी वाले हैं, इनमें से फरारी में कौन कौन बैठा है? एक भी नहीं। लैम्बोर्गिनी में कौन कौन बैठा है? एक भी नहीं। हुँ, मर्सिडीज वाले में कौन बैठा है? एक या दो लोग। सो हाउ हुँ, कैन समथिंग दैट यू हैव नेवर इवन एक्सपीरियंस बी योर फेवरेट? हुँ, कैन इट बी? आज मैं आपसे अगर आपका फेवरेट खाना पूछता हूँ, क्या आप मेरे को ऐसी क्यूजीन बता सकते हैं जो कि आपने कभी चखी ना हो? डेफिनिटली नॉट। और ये मार्केटिंग है जिसने हुँ, आपको ये बिलीव करा दिया है कि आपको वो गाड़ी आपकी फेवरेट है, बिना उसे हुँ, एक्सपीरियंस करे, बिना उसके बारे में जाने, बिना उसको मतलब अंदर बैठे तक नहीं हो, चलाना तो चलो बहुत दूर की बात। बहुत दूर की बात सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट पीपल नीड टू बी मोर है। माइंडफुल ऑफ। हुँ, एंड यंगर जनरेशन, जितना टाइम आज ये लोग बाकी चीजों को समझने में और लोगों से पूछने में जाते हैं, इतना थोड़ा सा टाइम खुद को समझने में डालें। अच्छे हुँ, तरीके से खुद के साथ भी अगर जो आप समझेंगे तो इट्स हुँ, इजी। 100%। मतलब मैं यही सोच रही थी कि जैसे क्रेडिट कार्ड का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसमें आजकल लोग हर किसी चीज में क्रेडिट कार्ड ही यूज कर रहे हैं। ग्रोसरीज बाय करने में, मतलब दैट्स समथिंग दैट आई फेल टू अंडरस्टैंड कि वो रिवॉर्ड्स के चक्कर में दैट्स सच अ विशियस साइकिल कि आप जो है रिवॉर्ड्स के चक्कर में कार्ड यूज करोगे, एंड देन दैट्स वेयर द प्रॉब्लम एक्चुअली स्टार्ट्स। सो एंड देन उसके ऊपर से मतलब द आइसिंग ऑन द केक इज बीएनपीएल, जो बाय नाउ पे लेटर का जो कॉन्सेप्ट है। अभी there's this one company that's shutting down. The entire business model was built on BNPL, but I'm not going to name the company, but the company is shutting down. I hope you also know the name of या the एंड company. थैंकफुली आई थिंक एक हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज है कि वेल व्हाइल द पीपल आर Hmm. नॉट लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ वेस्ट, बट द Hmm. रेगुलेटर्स आर. Yeah. So while we may not like a lot of things that the regulator does in India, but Hmm. honestly if not for regulator, मतलब अब तक तो यहाँ पे इतने मास सुसाइड हो गए होते हैं कि जिसका लोगों को अंदाजा भी नहीं होता कि जिस Hmm. तरीके के प्रोडक्ट्स जो वेस्ट में है। आज आपने ग्रोसरी की बात करी, लास्ट ईयर 27% ऑफ द
grocery purchased Hmm. in New York City, NYC, were purchased on EMI. आप सोचो ग्रोसरीज EMI पे. Hmm. So there is a structural problem, right? Because people are spending. तो और उससे क्या होता है कि आपको वो क्यों वो लोग EMI दे रहे हैं? Because they are selling you products which you can't really afford. वो Hmm. आपको ऑर्गेनिक या फैंसी डाइट्स या इसके नाम पे ऐसे प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं जो अदरवाइज मेहनत के पैसे से यू विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड. Yeah. तो इन ऑर्डर टू सेल दैट दे विल गिव यू इजी लोन्स. Hmm. Now that is something, and this is why you need guide, you need जैसे कोच Yeah. आपको चाहिए होता है ना. अब पता तो सबको ही है कि Hmm. आज आज अगर आप फिटनेस के अंदर हैं तो सबको पता है कि कितने क्रंचेस करने से पेट कैसे कम होता है, कितने Hmm. एब्स करने चाहिए, कितने पुशअप्स मारने चाहिए. बट उसको गाइड करके आपको डेली उस रास्ते में आपके साथ रहना is Correct. what a coach does, and that is exactly what your financial coach does when it comes to your finances. Hmm. कि जब आप एक पीरियोडिक रिव्यू करते हैं ना, Hmm. आप वंस अ क्वार्टर भी अगर आप किसी के साथ बैठ करके, एक प्रोफेशनल के साथ बैठ करके, इफ यू रन थ्रू ऑल द थिंग्स दैट यू हैव डन इन अ क्वार्टर, इट Hmm. गिव्स यू सो मच ऑफ रिफ्लेक्शन, Yeah. राइट. And it's such a great analogy actually. I had never looked at it from this point of view कि जैसे हम एक करियर में होता है तो हमारे पास करियर कोच है, हमारे फिटनेस के लिए हमारे पास फिटनेस कोच है, बट फाइनेंशियल कोच जो हमारे फाइनेंसेस को मैनेज मतलब नॉट जस्ट मैनेज बट हेल्प अस नेविगेट थ्रू द लिटिल लिटिल डिफिकल्टीज दैट वी कम अक्रॉस एज वी move in life. So that's a great insight actually. That's one of my So biggest financial, takeaway. so this is financial coaching is a very prominent profession in the Hmm. West, and that is what we do at One Finance in Hmm. deep, because it's not about ये वो बात हो जाएगी जैसे फिटनेस इज नॉट अबाउट लूजिंग वेट, राइट? वैसे ही Yeah. फाइनेंस इज नॉट अबाउट CAGR. Yeah. Wealth creation Got is it. just one byproduct of good financial planning, Hmm. but that's not the whole purpose of financial planning, or that's not the purpose of money itself. Hmm. Right. Accumulation तो पैसे का एक बाय प्रोडक्ट है, पर Yeah. पीसफुल जिंदगी अच्छे तरीके से जी पाना, जिंदगी के अच्छे तरीके से लाइक टू बी एबल टू लिव अ फुलफिल्ड लाइफ इज अ रीजन व्हाई यू नीड मनी, राइट? Hmm. And it's sad that I mean लाना नहीं चाहिए इस conversation में, but it's sad that all of this was never even touched upon in the schooling या फिर मतलब until unless you are studying finance you are not even taught कि भाई कैसे आपको मैनेज Yeah, करने पड़ सकते even हैं. in finance, right? Even in finance, there is no behavioral aspect of the Yeah. financials that is shown, and Yeah. financial success was all about performance in terms Mm. of returns. Yeah. दो ROI परसेंट data. देखो, एक मेरे को बात बताओ, 11% या 14% CAGR का Hmm. 20 साल के होराइजन में, मैं बोलता हूँ चलो आपको 1 करोड़ के ऊपर 30-35 लाख का फर्क आ भी गया, हाँ. ठीक है, आप 20-25 साल आप इन्वेस्टेड थे. व्हाट विल यू डू विद दैट 30 लाख रुपीज विद द इरोडिंग वैल्यू? आप उसको नेट ऑफ देखोगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि Hmm. इन्फ्लेशन और ये सब आप एडजस्ट करते करते जाओगे, तो नेट ऑफ देखोगे तो कोई ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं. बट इफ Hmm. दैट इज अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ ऑल योर मेंटल पीस, रोज सुबह अपना पोर्टफोलियो देखना, रोज सुबह ये म्यूचुअल फंड से दूसरा, दूसरे से तीसरा, Hmm. फिर तो आप उतना ही, अगर आप अपने काम पे फोकस करते, अपने रिलेशनशिप पे, अपने हेल्थ पे, बाकी चीजों पे Hmm. फोकस करते, तो वो 35 लाख की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको इन मोस्ट केसेस. True. Hmm. Uh, the next that I want to talk about is investments only. Warren Buffett को जैसे अभी आप mention कर रहे थे, he said that I bought my first stock at the age of 11 and I was late. So people, took that just one line and then they're like, start early, start early. I used to see comments of people's as young as 16-year-old, sir, because of this video, I have made my first investment in SIP. पहली बात तो तुमने खुद कमा के करी है या फिर तुमने अपने मम्मी पापा से लेके जो है उसको एसआईपी में डाल दिया. सो दैट्स नॉट योर इन्वेस्टमेंट, दैट्स योर दैट यू जस्ट बोरोड मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड देन यू इन्वेस्टेड. सो व्हाट आर योर थॉट्स, किस एज में इन्वेस्ट करना राइट है? आई नो द लार्जर पिक्चर इज कि जैसे आपने कनेक्टिंग इट विद द फाइनेंशियल प्लानिंग वाला पॉइंट कि जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, बट स्टिल आई लाइक यू टू टेक इट इन ऑन अ डीपर लेवल, इन्वेस्टमेंट. सो वॉरेन बफे का ना लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं कि अच्छा ठीक है, हम्म. वॉरेन बफे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, चार्ली मुंगर, हम्म. इन सब की लोग लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं. I'll tell you, Warren Buffett was not an investment idol for me, but he was a life idol for me in a very specific हम्म. sense. वो 94 95 के आई थिंक अभी, हम्म. एंड हम्म. टुडे आल्सो ही हैज वन कोक जब भी खाना खाते हैं.
हुँ, ठीक है, जिसको हम सब लोग बोलते हैं कि ये तो जहर है, ये तो ऐसा है हुँ, वैसा है, ठीक है, हुँ, वो जिंदगी भर से पी रहे हैं। उनके हुँ, काफी सारे इंटरव्यूज ये भी हैं कि आई रियलाइज दैट I analyzed the data of all the people death, and the हुँ, lowest amount of death were among kids less than 6 year old. Then I changed my diet to the of a 6 year old. मतलब he takes it as a jokingly. What I'm trying to tell you is that he वो हो या चार्ली मंगर हो या मैं आपको वर्ल्ड के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। हुँ, 99 तक चार्ली थे ना, और लास्ट ईयर की भी बर्कशायर हैथवे की मीटिंग में वो थे। ही पास्ड अवे हुँ, आई थिंक इन 23, yeah, बट yeah, 22 वाले मीटिंग में भी वो थे। yeah, अब and he was hale and hearty, he was in his हुँ, senses and all the things that he was talking, right? yeah, एंड लास्ट दिन तक भी उनकी डाइट वही थी। वो हुँ, सारा खाते थे, सारा अपना रहते थे, सुबह अपने मतलब जो भी उनको फिटनेस के लिए थोड़ा बहुत जो करना पड़ता होगा वो भी करते थे। हुँ, बट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक दैट ही वाज एबल टू लिव टिल 90 हैप्पीली yeah, एंड सेन। आप पहले क्या वो तो करोगे कि नहीं? हुँ, आज की तारीख में आप 11 साल की उम्र में चलो स्टॉक ले भी लोगे, बट विल हुँ, यू बी हैप्पी विद इट? विल यू बी एबल टू लिव डिजीज फ्री एंड लिव हैप्पीली टिल दैट एज? वो हुँ, तभी पॉसिबल है व्हेन यू आर एट पीस विद योर फाइनेंशियल डिसीजंस। इफ फाइनेंशियल डिसीजंस आर गिविंग यू एंजाइटी, you will हुँ, lose all the money in taking care of the diseases that that anxiety gives you. ठीक है, yeah, तो इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात है ना, अभी हम हमारे प्लानर्स और इनमें भी हम देखते हैं मोर देन 20% ऑफ वन फाइनेंस मेंबर्स को हमने एडवाइस किया है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कम करो, आप पहले लोन रीपे कर दो। okay, क्योंकि हुँ, उनको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इतने ज्यादा बेच दिए गए हैं कि वो लोन ले लेकर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हुँ, क्योंकि उनके दिमाग में बिठा दिया गया है 9% में पैसे लेंगे, 12% में देंगे। हाँ, डजंट वर्क दैट वे, इट्स नॉट हाउ right, इट वर्क्स एंड नॉट हाउ इट्स गोना वर्क फॉर एवरीवन। वो लेवल के लिए yeah, आपकी पर्सनालिटी बहुत अलग होनी चाहिए, बहुत shrewd होनी चाहिए, एंड वेरी हाई ऑन यू नो हाई टेंडेंसी या हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ स्ट्रेस होना चाहिए आपके अंदर। हुँ, तो वो सब चीजें बहुत ध्यान रखने की बात है। और जहां तक इन्वेस्टमेंट्स की बात है, आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स डेफिनेटली इट्स अ मीन टू गिव यू सर्टनिटी कि भाई आज जो मेरी व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इफ यू हैव टू से व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अ, मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि टू बिल्ड द हैबिट ऑफ कीपिंग अ सेट ऑफ मनी असाइड एंड मे बी डिवाइडिंग इट इन डिफरेंट पार्ट्स सो बट दैट व्हाई एंड एंड में क्या करोगे उसका? कि कभी ज़रूरत पड़े लाइक वन इज़ डेफिनिटली कि इमरजेंसी में कोई ज़रूरत पड़े या फिर मेरे जैसे कोई फ्यूचर में प्लान्स जैसे मुझे मान लो कोई एजुकेशन करनी है तो उसके लिए बस एक हैबिट बिल्ड करना है ताकि मैं वो अपने गोल तक जब पहुँचूँ, जब मुझे एक्चुअली में ज़रूरत हो तो मेरे को पैनिक ना हो। मतलब दैट्स व्हाट माय सो पर्सपेक्टिव इज़। इन्वेस्टमेंट के दो ही कारण थे, ठीक है? हुँ, देयर कैन बी ओनली टू थिंग्स। वन, इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हुँ, एक है अपग्रेड, हुँ, ठीक है, जो हुँ, वेल्थ क्रिएशन से आ सकता है, हुँ, ठीक है। सेकंड, जो भी मैं अपनी लाइफस्टाइल इंक्रीज कर रहा हूँ या जो मेरी हुँ, अभी की लाइफस्टाइल है वो किसी भी एडवर्सिटी में वापस नीचे नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये दो ही पर्पस हैं इन्वेस्टमेंट्स के, और तीसरा कोई भी पर्पस नहीं। हुँ, अब वो पहले वाले पर्पस आप अचीव करोगे बाय एक्सपीरियंसिंग या बाय नेटवर्थ या क्या, वो आपका इंडिविजुअल एक आपका हो सकता है कि किसी को हुँ, घर लेने में ज्यादा अच्छा लगेगा, किसी को बैंक बैलेंस में ज्यादा अच्छा दिखाई देगा वो, और वो भी समझना हुँ, जरूरी है, राइट? हुँ, सो पॉइंट इज दैट इन्वेस्टमेंट इन इटसेल्फ इज नॉट द एंड गोल। आप उस हुँ, इन्वेस्टमेंट से कुछ तो करोगे, या तो अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाओगे या तो उसको सेव ऐसे करके रखोगे कि ताकि वो सर्टेनिटी में चलती जाए। और आज की तारीख हुँ, में प्रॉब्लम यही है, जो सर्टेनिटी का जो कैपिटल है, इमरजेंसी प्लानिंग का कैपिटल आप इक्विटी में लगवा रहे हैं लोगों का। आप हुँ, रिटायरमेंट प्लानिंग जो लोगों की है, वो रिटायरमेंट के बाद का पैसा, वो 100 माइनस एज ये वो सब बकवास करके लोगों का 70 साल के आदमी का 40-40-50% पैसा इक्विटी में लगवा दिया। हुँ, What if he's going to need it after 3 months? yeah, And at that point in time, if the markets are 50% down, who can guarantee him that this money will come back in the same yeah, form? And does he really need to chase 5% extra return for the last 10, 15 years of his life? हुँ, No. He has saved that money because he can live with dignity for the next 10, yeah, 15, 20 years, whatever he's living. हुँ, उसी को आपने जेपटाइज कर दिया, और ये मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा क्राइम ऑन ह्यूमैनिटी है। और हुँ, इसको काफी मतलब people need to come out really harsh on it. But again, like I said, the entire investment का incentive system is built around heavy investing. हुँ, तो आप जैसे ही किसी को बोलोगे कि अच्छा ठीक है ये तो एनपीएस है, जैसे एनपीएस क्यों नहीं बिकता?
क्योंकि उसमें कमीशन ही नहीं है, 50 रुपए 100 रुपए मिलता है एक एनपीएस करवाने में, तो कोई नहीं हम्म। बेच रहा उसको। करेक्ट, करेक्ट। और जबकि कितनी इम्पोर्टेंट चीज है वो, बहुत लाइक इंपॉर्टेंट स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब कुछ है, लेकिन हम्म। लोग एफर्ट डाल डाल के आपको गलत प्रूव करने का ट्राई करेंगे कि क्यों एनपीएस नहीं करना चाहिए। और उसको बिल्कुल बिजार चीजों से कंपेयर करके दिखाएंगे, कुछ भी, देखो इस कुछ पे भी। डालोगे तो। मतलब हम्म। आपने एनपीएस में डाला तो आपको कल उठ के पैसे की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अगर आपने इक्विटी में डाला तो आपको पैसे की हम्म। जरूरत नहीं पड़ सकती कल उठ हम्म। राइट। के। ओके, दिस इज द लास्ट लेग ऑफ द कॉन्वर्जेशन। So, हाउसिंग, यू, जब आपने स्टार्टिंग करा था हमने कॉन्वर्जेशन का, तब आपने बोला था मैंने तो आज तक किसी भी ऐसे करोड़पति से नहीं मिला हूँ जिसका घर नहीं है। सो लेट्स टॉक टू पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ लेट्स से 20 to 30 का एज ग्रुप है, आप उनको एड्रेस करिए कि व्हाट्स द राइट एज टू मे बी थिंक अबाउट बाइंग अ हाउस, और ये जो ब्लैंकेट एडवाइस है कि हाउस मत खरीदो, ये तो डेफिनेटली लाइक ये तो आई डोंट थिंक दिस इज प्रोडक्टिव, बट टेल अस अबाउट योर थॉट्स ऑन बाइंग हाउस। पहली बात तो कोई भी गोल लाइफ में, कोई भी हम्म। गोल किसी एज से नहीं बंधित होता, वो जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो स्टेज से उसको हमेशा राइट। इक्वेट करें। हम्म। अगर आप अपने लाइफ में एक ऐसे स्टेज पे हैं जहां पे अभी भी आपको मोबिलिटी की जरूरत है, हम्म। आपको नहीं पता है कि आपने अभी तक यू हैव नॉट been into a stable relationship, or you have not decided on your city of placement, or you have not decided ke where exactly you see a lot of perspective in growth, then हम्म। definitely it makes no sense to buy a home at that stage, हम्म। even if you can afford, right? हम्म। Or secondly, once you know that this is a place that you want to buy and this is a place that you want to actually build your life on, जो कि हम्म। करना एक लेवल के बाद जरूरी हो जाता है सबके लिए। देखिए, या। हम है ना, एज ह्यूमंस वी आर सोशल एनिमल्स, एंड वी आर इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ डोमेस्टिक सिचुएशंस। हम्म। तो जब आप when you plan to procreate, or when you plan to take your genetics ahead and all that stuff, हम्म। या। उस टाइम पे आपके लिए ज्यादा एक जगह पे रहना और एक जगह पे डोमेस्टिक होकर के रहना वो जरूरी हो हम्म। जाएगा, तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल लेना चाहिए। सेकंड, अगर आपको पता है कि हाँ ठीक है, नहीं नहीं, आई एम गोइंग टू इनहेरिट अ लॉट ऑफ रियल एस्टेट हम्म। फ्रॉम माय फादर और फ्रॉम हम्म। माय मदर और एनीवेयर, हम्म। जहां से मेरे को पता है कि अच्छा ठीक है, आई ऑलरेडी हैव होम्स where I'll be able to like, so you are a Gen 3 technically। करेक्ट, जेन 3, राइट। जेन 3 हो आप, तो आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, तब आप हम्म। अच्छे से लो। और अगर आपका माइंडसेट भी वैसा है, तो आप रिस्क लो, फिर आपको थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट आर्ट्स में करो, आप स्टार्टअप में हम्म। इन्वेस्ट करो, वो क्योंकि करेक्ट। आपको आपके साइकोलॉजी और आपके फाइनेंशियल्स दोनों को सपोर्ट करता है। हम्म। तो इसीलिए ये राइट। ये बहुत जरूरी है। जो जिसके पूरे फैमिली में किसी के पास घर नहीं है, 5 लोगों की फैमिली 1 BHK में रह रही थी, उनको तो लेना जरूरी है ना। वो जो मैंने कहा कि पैसे का क्या काम, आपकी लाइफस्टाइल अपग्रेड करे और फिर राइट। उसको किसी भी एडवर्स सिचुएशन में स्टेबल रखे। स्टेबल ये रखे। 2 काम है इन्वेस्टमेंट्स के, तो अपग्रेड हम्म। भी तो लेना चाहिए ना आपको भी। दैट्स अ होल पॉइंट ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइफ। हम्म। Absolutely true, sir. I think very one of the most productive conversations I've had. Thank you so much for taking out time. And थैंक्स do टू यू। guys do follow Keval sir on Twitter, and do check out One Finance. Download the app, know your money sign, and definitely connect with the finance professionals. First session आप लोगों को free मिलेगा, so you can definitely talk to the finance professional and understand about your finances and plan them better. And yes, reach out to Cable sir if you have any doubts. He's very down to earth. He was kind enough to, show up on the podcast episode. So thank you so much once again. Have a good day, sir. थैंक यू पूजा, सेम टू यू, बाय बाय।